ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਦੀਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਦਾਨ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਆਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 5 ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। SSM ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, SKM ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। SKM ਬਣਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ MLA ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ SSM ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖੌਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਈਆਂ। 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ SSM ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। SSM ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, SSM ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? वीर जी ऐसे है, सबसे पहले घोषणा की थी गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने, उन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने बोला था 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम, और हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, जो उन्होंने सबके सामने बताया। तो जैसे उनका हरियाणा में विरोध हुआ, पंजाब में विरोध हुआ, उसके बाद अपनी 22 जथेबंदी पंजाब की थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। SS के उन्होंने अपनी एक पार्टी घोषित कर दी कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखो, उनके अंदर सबसे बड़ा नाम है बलबीर सिंह राजेवाल। राजेवाल जी की बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा सम्मान है, इस चीज को हम भी मानते हैं। लेकिन राजेवाल जी से जब हमने बात की थी, उनको बताया था कि आप गलत कर रहे हो, ये चुनाव मत लड़ो, तो उन्होंने बोला नहीं, हम सत्ता में आकर ही इस चीज को बदली कर सकते हैं। तो जोगिंदर सिंह उग्रहा जी ने एक बात बोली थी कि हम है ना तीसरा फ्रंट बन के, मतलब के तीसरा मोर्चा बन के, एक तरफ जो राजनीतिक है वो, एक तरफ जो सत्ता में है वो, एक तरफ जो विपक्ष में है वो है, और तीसरा फ्रंट बनाया था SKM। SKM एक ऐसा फ्रंट तैयार हो गया था वीर जी, जिसकी पूरी दुनिया पे नजर थी, पूरी दुनिया ये देख रही थी कि SKM अभी क्या करेगा। लेकिन इन्होंने, राज्यपाल जी ने, गुरनाम सिंह चंदूड़ी जी ने, इन्होंने अपनी पार्टियां बना के उस SKM को कमजोर करने की कोशिश की थी। अभी पूरे हरियाणा में
पूरे पंजाब में एक बात उठ रही है कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब तो बीजेपी ठीक कर रही थी कि भाई ये तो सत्ता में आना चाहते हैं, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले आप अगर देखोगे तो जो अपना ये किसान आंदोलन हुआ था, इससे पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जो अन्ना हजारे ने किया था। उनमें से एक पार्टी निकली थी आम आदमी पार्टी। तो इस समय पर भी बीजेपी ने ये बोला था कि इसमें से राजनीति में लोग आएंगे, और वही हुआ। राजनीति में कुछ लोगों ने घोषणा कर दी कि भाई हमने ये एसकेएम बना दिया, एसएसएम बना दिया, ये बना दिया, बना, मतलब कि ये बता दिया लोगों को कि हाँ भाई ये राजनीति करना चाह रहे थे। हालांकि जो एसकेएम था वो अराजनीतिक था, अराजनीतिक है। जो एसकेएम के अंदर से जो लोग सामने आए हैं उनके बारे में क्लियर बता दिया गया है। खुद जोगिंदर सिंह गुराजी ने भी बोला है कि वो लोग राजनीति करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, करेंगे वो राजनीति। भाई उन्होंने तो पहले भी की है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, राज्यपाल जी लड़ चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, गुरनाम सिंह चुन्नी लड़ चुके हैं, और 2 बार चुनाव पहले राकेश टिकैत भी लड़ चुके हैं। शायद इस बात का किसी को पता नहीं होगा, राकेश टिकैत खुद 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं। और इतनी बड़ी हार हुई थी इनकी कि जो इनका नाम था ना, वो नाम इन्होंने अपना खुद का मिटा लिया था। और अभी इनका जो नाम हुआ था, हाँ भाई ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की, मजदूर की, एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या दिखाया कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सत्ता में आके बदली करेंगे। वीर जी, ऐसा नहीं होता। देखो, सत्ता में आने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। सत्ता में आने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी इमेज क्या है, आप क्या कर सकते हो। पंजाब की जो जनता है वो ऐसा जवाब देगी कि लोग याद रखेंगे। शायद ही इनकी जमानत बच पाए, शायद। राज्यपाल जी खुद अपने आप में एक बहुत बड़े नाम है। हम खुद कह रहे हैं इस बात को, खुद जोगेंद्र सिंह गुराजी भी कह रहे हैं कि राज्यपाल जी ने बहुत गलत फैसला किया। और गुरनाम चौधरी ने तो किया ही किया है, बहुत गलत फैसला है ये फैसला जो इन लोगों ने किया है चुनाव लड़ने का, ये ਜੀ बहुत बड़ा गलत ਜੀ गलत ਜੀ किया है इन्होंने। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। जी, देखो वीर जी, अपने देश के अंदर है ना, एक बच्चा भी पैदा होता है वो भी राजनीतिक है। अगर जिसको वोट डालने का अधिकार है वो राजनीतिक है, इस बात को हम मानते हैं। जो जोगेंद्र सिंह गुराजी हैं, उन्होंने अपने शुरुआत में एक शपथ ली थी कि मैं सिर्फ किसान, मजदूर की और गरीब की लड़ाई लड़ूंगा, और उसके बीच में ना किसी पार्टी से जुड़ूंगा, ना किसी का प्रचार करूंगा। और वो आज भी अपनी बात के ऊपर कायम है। ये बात सबसे बड़ी है जो उनको बहुत बड़ा बनाती है। और आज भी वो उस चीज के ऊपर कायम है। आज भी अगर कोई उनसे पूछता है जी आपकी 22 जत्थेबंदियां चुनाव लड़ रही है, क्या आप उनको सपोर्ट करोगे, तो क्लियर बोलते हैं नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात क्यों आई, किस लिए आई, सबसे बड़ी बात ये है कि सोचना चाहिए पंजाब की जनता को। जोगिंदर सिंह ओराजी अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या सोच के बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। भाई हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर हम खुद नहीं लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। अगर हम राजनीति में जाएंगे तो हमारे को वही भाषा बोलनी पड़ेगी जो एक राजनीतिक पार्टी बोलती है। और राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा फायदा उठाया, हमारा आम आदमी का हमेशा फायदा उठाया है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हमेशा उन लोगों ने हमारा फायदा उठाया है। वो वायदे बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लास्ट में क्या करते हैं वीर जी, कुछ भी नहीं करते वो। अगर वो ठीक काम करते तो क्या हमारे को 13 महीने बॉर्डर पर बैठना पड़ता? आप सोच के बताओ। पूरी पंजाब की जनता से मेरा एक सवाल है, अगर राजनीतिक पार्टियां अपने सही ढंग से काम करती तो क्या 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठे रहते? क्या 720 साथी जो हमारे हमारे को छोड़ के चले गए, क्या उनकी हम साथ देते? ये एक सोचने वाली बात है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, ना कि एक राजनीतिक पार्टी जो हमारी लड़ाई लड़ रही है ना। राजनीतिक पार्टी हमेशा बड़े बड़े वायदे करती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। और वही काम 22 जत्थेबंदियों ने और गुरनाम सिंह चुन्नू ने कर दिया। तो वीर जी ऐसा है, जो मतलब ये पार्टियां जो घोषणा कर रही है ना, जो ये कर रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लड़ना है तो आपको खुद को फ्रंट पे आना पड़ेगा और खुद को दिखाना पड़ेगा। ये जो आंदोलन हुआ था अपना किसान आंदोलन जो हुआ था, पूरी दुनिया की इसके ऊपर नजर थी। इस आंदोलन के अंदर सबसे बड़ी जो मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते ना हम, कि भाई ये मैन थे, वो थे जोगिंदर सिंह गुराह जी।
कभी उनको लाइमलाइट में नहीं आने दिया गया। लाइमलाइट में कौन आए? राकेश टिकैत आए, राज्यपाल आए, ये लाइमलाइट में आए। वो लाइमलाइट में आने का मतलब ये था कि इनको लाइमलाइट में दिखा के ये दिखाओ कि ये राजनीति करना चाहते हैं, और वही वो लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो आम मजदूर की, आम किसान की जो बात कर रहा है, उनको साइड कर दिया गया और इन लोगों को दिखाया गया, और बाद में प्रचारित कर दिया गया कि किसान तो वो राजनीति करने के लिए आए थे। ये हुआ था वीर जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ? देखो वीर जी, मेरी जैसे उग्रा साहब से मेरी बात हुई थी, तो उग्रा साहब ने ये बोला था, दीपक भाई अभी हमारी लड़ाई है एमएसपी की, अभी हमारी लड़ाई है C2+50 के आधार पर हमारी फसलों की खरीद की। अभी हमारी लड़ाई है जो अपना किसानों का जो कर्ज है, वो संपूर्ण कर्ज माफी की। अभी हमारी जो लड़ाई है ना, वो बहुत बड़ी लड़ाई है वीर जी। वो इतनी बड़ी लड़ाई है कि इसके अंदर पूरे पंजाब को, पूरे हरियाणा को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को एक ताकत निकालनी पड़ेगी कि भाई हमारे को हमारा हक चाहिए। हम ये नहीं कि हम कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप बताओ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बोल रहे थे कि किसानों की फसल की खरीद जो किसान का लागत लगती है, उसका डबल करके एक्स्ट्रा 50% देंगे। आपके पास मैं ये वीडियो भेजूंगा, आप खुद देखना, जो उन्होंने खुद ने बोला हुआ है। मतलब कि 50% एक्स्ट्रा देंगे। वो जो बोला था ना, किसान की आय डबल हो जाएगी 2022 में। आज 2022 आ चुका है, क्या किसान की आय डबल होगी? आप खुद एक किसान के बेटे हो, क्या आपको जो मिल रहा है, जो आप लागत लगाते हो, उसका डबल मिल रहा है आपको? डबल तो छोड़िए, जितना आपने लगाया क्या वो आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और जो अपने पंजाब की, हरियाणा की जनता है, वो आज भी मतलब कि ये इंतजार करती है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था, हो सकता हमारे को मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी वीर जी। ये लोग क्या था, इन्होंने बस जुमले बनाए थे, वो जुमले हवा में छोड़ दिए और उन जुमलों में जनता उलझ गई। हालांकि हमारे को ये देखना है कि हमारे को मिल क्या रहा है। अगर हम चलो 1 किले के अंदर हम अपनी गेहूं की खेती करते हैं, उसमें 1 किले के अंदर हम अगर 25,000 रुपए खर्च करते हैं, क्या हमारे को 25,000 रुपए वापस मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। हमारे को 10,000 रुपए वापस नहीं मिल रहे। लेकिन क्या है कि किसान की ये है, उसको दुनिया का पेट भरना है, और किसान खुद ये सोचता है खुद भूखा रह जाएगा लेकिन दुनिया का पेट भरता है वो। और आज किसान की क्या हालत है, ये सबके सामने तक जाहिर है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? वीर जी, सबसे पहली बात तो ये है, अगर वो किसान आगू सही में किसान आगू होते, तो वो किसान के साथ खड़े होते। अभी वो हो गए राजनीतिक। अगर वो राजनीतिक हो गए तो उन्होंने सबको बदनाम करवा दिया एक टाइप से कि भाई ये तो राजनीति करना चाह रहे थे। और हालांकि जो सही में किसान आगू है, वो राजनीति नहीं करना चाह रहे। अभी जोगिंदर सिंह उराव जी है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन संघ है, वो राजनीति नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम एक थर्ड फ्रंट बन के लोगों की सेवा करें। वो एक अलग चीज होती है यार, इन्होंने क्या दिखा दिया कि हम तो बस राजनीति करेंगे। ये राजनीति करना चाह रहे हैं, और लोग क्या है, इन बातों को समझ चुके हैं। लोग खुद बोल रहे हैं कि ये 5 वोट भी नहीं ले पाएंगे। तो वीर जी, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप किसान के लिए लड़ रहे हो ना, तो पहले किसान को उनका पूरा हक दिलवाओ। पूरा हक क्या हमारे को मिल गया? चलो 3 कानून रद्द हो गए, क्या एमएसपी हमारे को मिल गई? क्या C2+50 के आधार पर हमारी फसलों की खरीद की गारंटी मिलेगी? अगर कोई हमारी फसल को नहीं खरीदता है, तो क्या उसको जेल जाने की गारंटी हमारे को मिली है? नहीं मिली पाई वीर जी। अभी लड़ाई हमारी असली यहाँ से शुरू होती है, और लड़ाई हमारी अगर किसान की है ना, तो हम किसान की ही लड़ाई लड़ेंगे, ना कि हम राजनीति करेंगे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ खड़ी है ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ प्रोग्राम ने? जी वीर जी, देखो हमने एक टाइम दिया है, जो अपने 22 जत्थेबंदी है जो पंजाब से चुनाव लड़ रही है, और जो ये अपना गुरनाम चढ़ूनी है, इनको भी बोला हुआ है, भाई आपने एक बार राजनीति करके देख लो, आपकी सीट तो एक भी नहीं आएगी। अगर आप वापिस हमारे साथ मिलते हो तो बहुत ठीक है, नहीं मिलते तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे।
और उसके बाद आप शामिल होने के बारे में सोचना भी मत। ये जनता है ना वीर जी, जनता क्या होती है, जनता एक बार देखती है कि हाँ भाई ये हमारे लिए लड़ रहा है, ये नहीं लड़ रहा है। अभी जनता के लिए कौन लड़ रहा है ये जनता को पता है। जो इन्होंने नाम लिया कि भाई हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, ये कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया है। 3 कानून आए थे, वो रद्द हो गए। दोबारा अगर ये सरकार आती फिर 3 कानून वापिस आ जाएंगे। तो हमने जीता क्या है? हमने अभी तक कुछ भी नहीं जीता। हम उस दिन जीत जाएंगे जिस दिन एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो जाएगा तो हम उस दिन लड़ाई जीत जाएंगे अपनी। आपको भी पता है इस बात का। जो किसान ने छोटा सा कर्जा, भी राजस्थान का जो केस है वो सबके सामने है। भाई किसान ने 2 लाख रुपए कर्जा लिया था, उसकी 2 करोड़ की जमीन 2 लाख में बेच दी गई। ये सबसे बड़ी बात है वीर जी, और सोचने वाली बात है। ये सबको सोचना पड़ेगा इस बारे में। भाई 2 करोड़ की जमीन हमारी 2 लाख में कौड़ियों के भाव गई है ना। भाई इसमें तो ये नहीं है भाई बहुत बड़ी कीमत मिली हमारे को, 2 करोड़ की जमीन 2 लाख में। तो वीर जी ये सोचना पड़ेगा, हमारे को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। भाई हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और ये सबको एक बार जागृत होना पड़ेगा। अभी चुनाव है, चुनाव 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद लोगों को सामने आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਗੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो वीर जी, 2016 में हरियाणा में अपना एक आंदोलन हुआ था, जाट आरक्षण आंदोलन। उसमें हमारे 32 भाइयों को गोली मारी गई थी, इसी बीजेपी सरकार ने गोली मारी थी। अगर हम बात करते हैं अपने जाट की, जमींदार की, पता है इस सरकार ने क्या दिखाया? इस सरकार ने दिखाया है जो किसान है ना वो सिर्फ जाट होता है। सिर्फ जाट किसान नहीं होता वीर जी, जो पंडित है, राजपूत है, गुज्जर है, बनिया है, वो सब किसान होते हैं। जो अगर अन्न भी खाता है ना वो भी किसान होता है। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वीर जी, अगर हम सभी किसान हैं तो हम अपने आप को पहचान क्यों नहीं पा रहे? गोदी मीडिया हमारे को दिखा रही है कि हम अलग हैं, हालांकि हम अलग नहीं है। अभी हम आपसे हर बार बात करते हैं, कभी आपने मेरी जाति नहीं पूछी, कभी मैंने आपकी नहीं पूछी। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको देखोगे ना ये बहुत बड़ी बात है। गोदी मीडिया क्या दिखाती है? ये जाट है, ये गुज्जर है, ये बनिया है। वो हमारे अंदर क्या है, काट कर रही है वो। अभी वो दिखा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे जाट लैंड। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी जातियां नहीं है क्या? क्या पंजाब के अंदर सभी जातियां नहीं रहती क्या? पंजाब में, हालांकि देखो मेरे को पंजाबी नहीं आती, मेरे को पंजाबी भाषा मतलब समझ में बहुत कम समझ में आती है, बोल नहीं पाता मैं। तो क्या मैं पंजाबी नहीं हूं? क्या मैं सरदार नहीं हूं? सरदार कौन होता है वीर जी? आज आपको मैं बताता हूं। सरदार वो होता है, सरदारी पद किसको मिलता है? जो कि सबको साथ लेके चले। अगर हम बोलते हैं ये सिख है, ये सरदार है, आप सरदार हो, सरदार वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, जो गरीब के लिए खड़ा होता है, जो मजदूर मजलूम जो होता है उनके लिए खड़ा होता है, वो होता है सरदार। और यही गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद नाम धराऊं। कि उन्होंने ये दिखाया था कि हम मजलूम के लिए खड़े हो सकते हैं और वही लागू करना पड़ेगा। अभी पंजाब के ऊपर सबकी निगाह है। क्यों निगाह है? खुद प्रधानमंत्री साहब ने पंजाब को, सिखों को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो बदनाम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सभी एक साथ खड़े हैं। पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान पंजाब के साथ खड़ा हो गया। उनके लिए वहीं पर क्या है, कमजोरी बात आ गई थी कि भाई 3 स्टेट एक साथ खड़ी है तो दिक्कत हो जाएगी। और हम इसलिए साथ खड़े हैं क्योंकि पंजाब अपनी सच्चाई पे खड़ा है।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।